Very good morning class. Hope you all are happy and fine these days. So welcome back to our English class. So students, हम previous class में complete करते हमारा direct and indirect speech, and we had seen lots and lots of questions, and we had also changed variety of questions into indirect speech. But आज के class में we are going to learn something new. We are going to learn something unique, which is one of the most important thing of your plus 2 syllabus, I can say, that is writing a paragraph. गोटे पैराग्राफ केमती लिखिबा, that is very important. तो might be बहुत जन questions पचरी परिबे कि paragraph तो आमे लिखि दो, but what is the importance of reading a paragraph? Paragraph टिको में काहे की पढ़िबो, भाई चैप्टर में काहे की पढ़िबो? Maximum of you may ask the question. My dear students, गोटे कथा को कहूची, तो मैं नोट मेकिंग करो, समरी करो, एसे लिखो, आर्टिकल्स लिखो, इनफैक्ट कि तमे क्वेश्चन आंसर्स भी लिखो. This writing a paragraph chapter is going to help you a lot in every aspect of your question and answer part or in the writing part. आउ थ रिपीट करूची पिले माने मु जो कथा गुडा को कहिली लाइक तुमरो आर्टिकल्स आर्टिकल राइटिंग हो कि तुमरो एप्लीकेशन राइटिंग हो, तुमरो लेटर राइटिंग हो, तुमरो क्वेश्चन आंसर राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग, समरी, नोट मेकिंग, एसे राइटिंग, एगुडा तो सब तुमरो राइटिंग पार्ट पिले माने. तो जेते बेले मु आंसर्स पढे वाइल चेकिंग आंसर्स मु गोटे जिंस पाई कि बहुत आंसर्स मेस अप हो जायता, यू नो, गोटे प्रोमिनेंट आंसर गोटे प्रॉपर आंसर मते मिलेला. तो दे आर सर्टेन स्टेप्स, किछटा स्टेप्स अछि पिले माने से स्टेप्स को फॉलो न कले you can never write a proper paragraph. तो paragraph writing is very important. Students, out here कहूँ कि 12th English to 12th standard English, it's not about writing an application और गोटे पढ़ने के लिखि दबो कि ग्रामर रे I कोठी लागिबो, B कोठी लागिबो, सेरा आमे देखि देबो. No, and not at all. Plus 2 English grammar or 12th English grammar or 12th English we can say, it's all about writing. तुम्हारा 60-70% only writing पिले माने out 30% तुम्हारा हल्का फुल्का questions. तो सेथिपाई this chapter writing a paragraph is very important in for your syllabus or for your plus 2 examinations. तो students देखो ताहले, तो before getting into the topic हमको first बुझिबा को पड़िबो जे what is a paragraph. A paragraph कहले कोन, what is the meaning of this word paragraph? A paragraph रा meaning कोन? Paragraph माने students होची, it is a combination of sentences. It's a combination of sentences. Combination of sentences. It's a combination of sentences. And what is a sentence? I'm already discussion करी दी जे sentence कहले कोन? A group of words. देखो पिला माने आउथरे होची paragraph कहले combination of sentences. बहुत गुडे वाक्य जते बडे एकाठी कंबाइन हे थांती ताकू हम गोटे पैराग्राफ बोली कहंती. ओके, एंड गोटे सेंटेंस कहली कोन? सेंटेंस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in an order which gives us a complete sense. Which gives us a complete sense. A complete sense. Okay, students? Or what a complete meaning you can say. What a complete meaning. Or a complete meaning. तो देखो ताहले paragraph कहले कोन? What do you mean by a paragraph? Paragraph कहले पहले माने it's a combination of sentences. Sentence कहले कोन? Sentence कहले पहले माने तुम्हारा formation जते बडे बहुत गुडी शब्द सीक्वेंस रे अरेंज हे थांती. तो सेते बडे आपण कंप्लीट मीनिंग के हम दोतबे. मीनिंग आपण तबे सीक्वेंस रे अरेंज हेतिबो, ताको हम कोनी गोटी सेंटेंस. शब्द मिसी जांती पिले माने सेटा हे जाय गोटे सेंटेंस. सेंटेंस मिसी गले सीक्वेंस रे माने सीक्वेंस वटा को बोलिबानी. सेंटेंस मिसी गले सेटा हे जाय गोटे
से जिन गुड़ी को फॉलो न कले आम बिल्कुल भी यू कैन से प्रॉपर पैराग्राफ गोटे मीनिंग आसी पाइबो जे प्रॉपर सेट न कले तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स द की points that we need to memorize. What are the key points? Okay students, the first one जो key points हमें मन रखिबा before writing any paragraph किसी भी paragraph लिखला पूर्व हमें को points follow करेगा. The first one is unity. First one is unity. Okay. Second one गोटी गोटी करे meaning मुझे भी don't worry. Second one is order. Second one is order. The third one is completeness. Completeness. The fourth one is fully structured. Fully structured. No, that meaning मुझे भी don't worry students. Fully structured. Okay students, fourth wala, the fifth one. The fifth one, I am writing it here. The fifth one, appealing. Appealing. The sixth one, reader friendly. Reader friendly. And the seventh one, logical. The seventh one is logical. तो ए सब जिनस स्टूडेंट्स की पॉइंट्स हम मन भितर रखिबार अछि व्हाइल राइटिंग एनी पैराग्राफ एंड गोटे जिनस स्टूडेंट्स मन रखिबो द इंपोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट ए लॉजिकल पार्ट ता होजे तुम्हारा इंपोर्टेंट मु ताको बॉक्स करिकि आईएमपी लिखि दो छै ना एटा होजे पिले माने तुम्हारा इंपोर्टेंट इन द सेंस मु तुमको बुझेबी व्हाई इज इट इंपोर्टेंट देखो पिले माने कोन कोन की पॉइंट्स हम जनरली मन रखिबा व्हाइल राइटिंग अ पैराग्राफ एनी पैराग्राफ तुम्हारा क्वेश्चन आंसर तो तुम गोटे लॉन्ग क्वेश्चन देखु जाओ 5 लाइन 6 लाइन रो 70 80 वर्ड्स रो छोटो पैराग्राफ में लिख जाओ तुमरो जोटा रहउची एसे हैला कि रिपोर्ट राइटिंग हैला कि नोट मेकिंग हैला हमें सब तेरे छोटो पैराग्राफ करके ताको पैराग्राफ चेंज करके हम लिखु जल्दी तो एई गुडा होची की पॉइंट्स जो हमको मन में रखिबा को पड़िबो व्हाइल राइटिंग एनी पैराग्राफ. The first one देखो पहले unity. The first one is unity. What is unity? जदि तुम्हारा वर्ड्स गुड़ा को यूनाइटेड नथिबो गोटे कहावत अछि पिले माने गोटे प्रोवर्ब हम समस्त सुनी छथि तुम माने भी सुनिथिबो यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइड वी फॉल. जदि हम यूनाइटेड है कि ठिया हबा तल देन वी आर गोइंग टू विन एंड डिवाइड वी फॉल. जदि डिवाइड हे जिबा देन हमें पड़ी जिबा. तो से शब्द गुडी को भितरे यूनिटी रहबा दरकार. ता माने तुम जदि प्रथम गोटे वाक्य लिखुजो सेकंड वाक्य संगे प्रथम वाक्य लिंक रहबा दरकार. For example, मुझे ना कोई भी कि write a letter to your friend that how do you enjoy your holidays. Okay. तो मैं लिखिबा hi hello तू भलो थी बोली हाथी मु भी भलो छी I am also fine and you know I have enjoyed the holidays like this. Hope you will also come next year. We will enjoy together. जब मैं एम्प्टी लिखला मैंने ठीक अछि. The words or the sentences are united. But जदि को पिले माने एही ना कहिबी एक सेम जिंस ना आ गोटे स्टूडेंट लिखिबो कि मु एमिति कि मो हेलो हाउ आर यू आई एम फाइन आई हैड एंजॉयड माय हॉलिडेज डू यू नो माय डैड हैड गिफ्टेड मी अ वॉच लास्ट ऑन माय लास्ट बर्थडे. ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस पिले माने गोटे जणे लेटर लिखिला से सेम लेटर टी को जणे लिखिला एमिति मो एंजॉय करी आशा करबी कि नेक्स्ट डे हम मिली मिसी कि ताको एंजॉय करबा गला हॉलिडेज को एंजॉय करबा. से सेम लेटर को आउ जणे लिखुची कि बर्थडे बढ़िया से एंजॉय कली एंड जानछु आ गोटे कथा मो जेजे बापा ना मो बापा ना मते लास्ट बर्थडे रे गोटे वॉच गिफ्ट करथिले. तो ए क्वेश्चन संगे ए सेंटेंस मते किछ दरकार कि नाही दैट हैज नो मीनिंग एट ऑल. तो सेटे को हम यूनिटी कहते. तो सेंटेंसेस मस्ट बी यूनाइटेड. गोटे सेंटेंस रो मीनिंग आरो सेंटेंस रो मीनिंग संगे एनी हाउ किछ खाप खाइबा दरकार. तो गोटे से जहा तुम प्रथम सेंटेंस रे लिखुजो सेकंड सेंटेंस रो मीनिंग ता संगे समान रहबा दरकार बा इंटरलिंक रहबा दरकार. The first one is unity. Second one is order. Proper order रहबो पिला माने order. जदि एक नंबर पॉइंट ए लिखुजे सपोज गोटे क्वेश्चन देछि आई एम गोइंग टू स्कूल आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल आई एट माय ब्रेकफास्ट. तीनटा लाइन होली पिले माने आउ थे कोची आई वेंट टू स्कूल. तीनटा जिंस पिले माने गोटे होछि आई वेंट टू स्कूल
returned from school and third one is पिले माने I ate my lunch at school. देखो पिले माने इटा होचे तुम्हारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो ताकि जब सीक्वेंस से बा ऑर्डर रे सजेबा तो प्रथमे मो स्कूल गली एक नंबर रे एटा आसीबो तापरे मो लंच करली स्कूल रे तापरे पिले माने मो स्कूल रे रिटर्न आसीबे तो देखो सीक्वेंस रे नाही ऑर्डर रे नाही मीनिंग भी चेंज हे गला कि जेतरा तो मीनिंग रे सजे देले 1 2 3 करी सजे देले देन तार गोटे मीनिंग पड़े आसीला सो सेकंड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ऑर्डर ए सेंटेंस गुडी को पिले माने ऑर्डर रे रखिबा इज वेरी इंपोर्टेंट ऑर्डर रे रखिबा को ही पड़िबो गोटे सेंटेंस को एंड द थर्ड वन इज कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस कहले कोन ना सेंटेंस रे गोटे कंप्लीट मीनिंग जेमे थिबो आई वेंट अरे वेयर डू यू वेंट ना आई वेंट टू स्कूल ओके लिखु जे पिले माने देखो आई वेंट गोटे आई वेंट तापर लिखली आई वेंट टू स्कूल आई वेंट तापर लिखली आई वेंट टू स्कूल तो ता माने कोन आई वेंट टू गले कोन करो तुमे जणा पड़ला ना किछ आंसर बट आई वेंट टू स्कूल तार गोटे प्रॉपर मीनिंग भी आसीला ओके गला नेक्स्ट पिले माने वी हैड कंप्लीटेड यूनिटी व्हिच इज यूनाइटेड सेंटेंस यूनाइटेड रहइबो ऑर्डर रहइबो कंप्लीटनेस रहइबो अ फुली स्ट्रक्चर्ड पिले माने गोटे प्रॉपर स्ट्रक्चर तुमे ताको दबो जो जिनसटा मु कहली गोटे स्ट्रक्चर एकदम पिले माने देखो फॉर एग्जांपल व्हाट इज द शेप ऑफ अ काइट गोटे काइट पिले माने दीटा ट्रायंगल मिसरे गोटे काइट रे यस एमती गोटे ट्रायंगल मिसरे एमती गोटे ट्रायंगल दीटा मिसरे तापर गोटे काइट है एग्जैक्टली पिले माने ए काइट जगह जो गोटे रेक्टेंगल एमती दीटा पकई देबे दीटा रेक्टेंगल से काइट रो शेप आसला कि नो काइट रो शेप आसला नि बा दीटा सर्कल पकई देबे काइट रो शेप आसला कि ना तो जे कोनोसी गोटे ऑब्जेक्ट हो बा जे कोनोसी गोटे पैराग्राफ भी हो ताको गोटे स्ट्रक्चर दबा निहाती दरकार स्ट्रक्चर गोटे निहाती रहइबो पिले माने स्ट्रक्चर कहले कोन गोटे प्रॉपर जे तुम कोठ मार्जिन छाड़िबो कोठ केते की गैप रखिबो कोठ केते की फुल स्टॉप परे कॉमा परे यू नो को कॉमा परे फुल स्टॉप परे केते की पैराग्राफ परे केते की लाइन छाड़िबो गोटे स्ट्रक्चर रहइबा निहाती दरकार को पैराग्राफ परे नेक्स्ट पैराग्राफ जदी चेंज हो जो केते लाइन छाड़िबो आगुर केते मार्जिन छाड़िबो वर्ड्स को भीतर किछि गैप रहइबो सो दैट इज इक्वली इंपोर्टेंट ओके स्टूडेंट्स तो गोटे स्ट्रक्चर रहइबा निहाती दरकार वेरी इंपोर्टेंट टू पुट अ स्ट्रक्चर कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन आप गोटे बात मन रखो पिले माने कि जो यूनिटी हैला ऑर्डर हैला कंप्लीटनेस हैला और फुली स्ट्रक्चर्ड ए चैप्टर है पिले माने they are generally you know interrelated to each other they are interrelated to each other okay students they are interrelated to each other next पता point has to be appealing that should be very appealing again पिले माने को कहले चाहिए कि appealing और reader friendly they are again related माने समान मीनिंग गुडा पाखा पाखी समान खाली को अलग अलग करिके दिया गया है मीनिंग गुडा पाखा पाखी समान ओके appealing and reader friendly appealing कहले कोन कि माने से सेम जिंस while you are writing a paragraph तब जब सीधा लिखि चलो विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंजिंग द पैराग्राफ ताता के मीनिंग ही नाही तुम कोन लाइब्रेरी न्यूज़पेपर रीडर माने जेति पढंती तबे सेति गोटे न्यूज़ पढु जो सेति आनी फील हो ओके बट सेति नहीं दैट शुड बी appealing clean neatness and with a good handwriting प्ले माने हैंडराइटिंग बहुत मैटर करे तो दैट शुड बी appealing that should be clean that should be very very tidy that the paragraph must contain a proper heading a proper change of paragraph a proper margin गोटे proper margin भी रहबा निहाती दरकार ओके तो appealing होबा दरकार that should be very clean that should be very neat that should be very tidy and एकदम clean neat and appealing लगबा दरकार गोटे paragraph that is also a key factor next reader friendly कहले देखिबो बहुत जण कहंती कि हमको ornamental words दरकार साहित्यिक भाषा दरकार एटा लिखिबो सेटा लिखिबो नो स्टूडेंट्स लिटरेचर इज
प्रॉपरली ताको सेट करे जड़े पढ़िबो ताको 100% बुझी पारिबो तो एई सब पॉइंट्स नथले पिले माने गोटे पैराग्राफ रे रीडर फ्रेंडली हे पारिबो नाही रीडर फ्रेंडली कहले जे पढुथबो से जेमिति बुझी पारथिबो तो हमर जदि 500 जाक पॉइंट क्लियर अछि देन ऑटोमेटिक गोटे पैराग्राफ रे रीडर फ्रेंडली हे ही जिवो ओके रीडर फ्रेंडली एंड अपीलिंग दे आर आल्सो रिलेटेड जे तमे प्रॉपर्ली अपने क्लीन नीट लिखिछ तो डेफिनेटली गोटे रीडर जे भी पढु जे से बुझी जिवो किछ प्रॉब्लम नै एंड द लास्ट वन इज माने लॉजिकल तमे जो पैराग्राफ लिखुछ पिले माने दैट मस्ट कंटेन सर्टेन लॉजिक गोटे लॉजिक रहिबा निहाती दरकार इट इज वेरी नेसेसरी कि गोटे पैराग्राफ रो लॉजिक रहिबा दरकार जो सेंटेंस को पिले माने को कहउतिले किछ टाइम पूर्व जो सेंटेंस को कि तमे जदि गोटे एप्लीकेशन लिखुछ मोर देह खराब हे छी गोटे एप्लीकेशन लिखुछ हला त लिखिबो मोर एया प्रॉब्लम हे छी मो सेति पई काली क्लासेस अटेंड करि परिबे तमे जदि लिखिबो जे मो देह खराब होला मो डॉक्टर को पाखु गली डॉक्टर मते कहले ट्रीटमेंट हुआ ट्रीटमेंट पर को 2 घंटा भाबिले कि वेदर को ट्रीटमेंट होई जिबि कि नहीं तापरे मने मने आनी कि मेडिसिन खाइ देली मने मने मेडिसिन आसला पर भाबिले एटा करिबि कि करिबिनी तापरे भाबिले टिके चॉकलेट्स खाइ देले देह भल लागिबो तो फिर माने दोज sentences they don't have any logic with the application तमे एप्लीकेशन रे कोन लिखिबो सर मो देह खराब अछि ए रीजन पे मो देह खराब डॉक्टर मते बेड रेस्ट देबा पई कहैछंती ए डेट टू ए डेट को जाई परिबिनी देह भल लागे मो डेफिनेटली जॉइन करबी सेति की तोर कथा बिले माने एप्लीकेशन रे तमे एटा को लंबे चौड़े एमनी थिला सेमनी थिला एया गली सेया गली लॉजिक जे जोटा नाही बिले माने से लॉजिक कथा गुडा का वेरी इंपोर्टेंट जे लॉजिक नाही तले से सेंटेंस रे बिले माने जे मीनिंग नाही एवडा को सब बिले माने थिबो तमर गोटे पैराग्राफ रे यूनिटी थिबो ऑर्डर थिबो कंप्लीटनेस थिबो फुली स्ट्रक्चर्ड थिबो अपीलिंग थिबो द रीडर फ्रेंडली थिबो सब हेला पर भी जदी से पैराग्राफ रे गोटे लॉजिक नाही बिले माने देन दैट पैराग्राफ इज नॉट गोइंग टू वर्क सेटा ऑटोमेटिक तमर मार्क्स ऑटोमेटिक कटि जो जदी से पैराग्राफ रे कोन से प्रकार लॉजिक नाही okay students so this was all about how to write a paragraph this is the first lecture and this is just an introduction to your writing a paragraph आउरी हमें आगु पिले माने धीरे धीरे कंप्लीट करबा ए पैराग्राफ आउरी बहुत सारा वीडियो छिबो तो मने रखिबो पिले माने व्हाट आर द की पॉइंट्स फर्स्ट होची यूनिटी सेकंड होची ऑर्डर देन कंप्लीटनेस द पैराग्राफ मस्ट बी फुली स्ट्रक्चर्ड ताकि द पैराग्राफ शुड बी अपीलिंग सो द अपीलिंग रहबा दरकार नेक्स्ट इज रीडर फ्रेंडली एटा रीडर फ्रेंडली हबा दरकार एंड दैट मस्ट बी लॉजिकल बट जदि तुम पैराग्राफ रे लॉजिक नाही देन दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क so these are the key points that we need to memorize that we need to remember while writing any paragraph that might be your question answers, that might be your summary writing, that might be your note making, report writing, essay writing, application writing, notice writing, letter to the editor writing. The kitchen writing portion by A gura very important and writing portion में students बहुत students पूरा mark करते because A सब जिन सब हमें generally follow करे मतलब दे. And what the most important thing that we need to remember is that तम्मे जदि गोटे पैराग्राफ टाको प्रॉपर्ली लिखबा को चाहछो आगो मदर टंग रे मने मने भाबो मदर टंग जोटा तुम मदर टंग ले माने हिंदी हो ओडिया हो डजंट मैटर तुम मदर टंग रे भाबो मदर टंग रे भाबी सरला परे तुम ताको धीरे ट्रांसलेट करिया पे ट्राई करो इनटू इंग्लिश. दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू टू मेक a paragraph very prominent or very beautiful. ताकू ही हमें एरर फ्री करबा पई बा फ्री फ्रॉम एरर करबा पई आगो मदर टंग रे मने मने भाबो तापर तुमे मन को लिखबा स्टार्ट करबा देन प्रॉपर्ली लिखबो यू विल बी एबल टू राइट अ पैराग्राफ. तो होपफुली स्टूडेंट्स आज हमें राइटिंग अ पैराग्राफ रो किछटा की पॉइंट्स देखले पैराग्राफ कोन जानले सेंटेंसेस कोन जानले एंड को की पॉइंट्स हम मन में रखिबा ताको मध्य जानले. सो होपफुली स्टूडेंट्स जहां पढेली तमने बुझी पाठिबो. In the next class I'll